So I also welcome Nilika ji in our MMTTC BHU. I am Anandvardhan Sharma, I'm Director MMTTC. As you know, we have talked earlier. So it is a great pleasure for us that you accepted our invitation. And Dr. Tiwari, who is conducting the program, he is also a part of MTTC. So he's conducting nicely. And I hope that the number is very good here on this platform. And now over to you. Thank you, Nilika. Pranam sir, thank you so much for having me. And indeed, it's my pleasure to be interacting with the faculty, such learned people from all across the length, breadth of the country. Professor Anand, this is my second interaction with you, and in fact, the third one. And I must say um that you are a very, very humble and a very forthcoming person I have met. Thank you so much for giving me this opportunity. Dr. Tiwari, thank you so much for introducing me. Um, I don't carry a vast experience with me. I'm just learning. And all of us on this platform learn from each other. And this is the basic objective of this NEP courses. And this is the endeavor of UGC that uh, uh, we are sitting apart miles of miles distance is not any kind of objection between us. Just the only thing is that I'm talking to uh, a device, and I'll be happy if I have more people interacting with me, because I don't know then whether I will be getting across to you or not. तो इसमें क्या है कि हम आपस में डिस्कस करेंगे, इज हिंदी okay with you all, English okay with you all, or mix of two okay with you all? Okay. So Balaji, this means mixed, huh? Okay. All right. Mix. All right. Great. Fine. Thank you. Thank you so much for your responses. Thank you. So, basically, ये जो topic है higher education and society, in fact, this entire theme which says education and society, particularly higher education and society, is a very, very, I must say, the core of what we are today. Or if I put it like this, the core of the business we are in today. Because I'm from business management, I'll say for the business that we are in today, this theme is the core of that business. I would like to pose a question to you all. हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, हम बात कर रहे हैं कि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु बनना चाहिए, और भारत के पास विश्व गुरु बनने के लिए सब all the raw material, all the ingredients are there in our country, Bharat. But my question to all you learned people, over 100 of you all sitting here, is कि भारत विश्व गुरु कैसे बने? आता काय झालं होता मंडे सुट्टी लागणार आहे आधी जावं लागणार रविवारी घरी सोडा मला आता सो भारत विश्व गुरु कैसे बने? Do you have any thoughts on this? Cheaper cost of education, somebody is saying cheaper cost of education, education quality, okay. और कोई किसी के पास और कोई थॉट है? हम लोग सब हायर एजुकेशन में हैं, हम लोग सब हायर एजुकेशन में हैं, हम लोग सब देश की बुनियाद जो है, नींव जो है, उसको सींचते हैं. माय क्वेश्चन इज कि हम यदि विश्व गुरु बने तो विश्व गुरु कैसे बने?
ease of reachability, by being a thought leader, by sharing epistemological, अच्छे शब्द है, by sharing epistemological thought with the world. Wonderful. Focus on equality, inclusiveness, infrastructure, access to this infrastructure, proper resource. Include spirituality in education by improving education and removal of corruption, equality, opportunity, inclusivity, high quality research, evaluation, proper education system, leadership. Yes. By doing our duty with 100% dedication, we should perform our duties. Yes. Yes, DKG. Skill based learning. Tripathi ji keh rahe, skill based learning. Rahul ji keh rahe, scientific outlook with inclusion. And yes, Yadav ji keh rahe ki we need to be innovative. That's absolutely right. We have to be. We must. Okay, so Govind Swami ji is saying that there has to be some program which is rooted in the which we have to be rooted, the grassroots program, and by using our ancient knowledge. Dr. Kavita, I absolutely agree with you. I agree with everybody, although improving our position at international level, and we need to have innovative thought. Udham Singh ji is saying yes, absolutely. Well, very good. By introducing efficient and dedicated teachers, Arvind Singh ji, you've nailed it. You've nailed it absolutely. We need to have dedicated teacher. Efficiency will come, but dedicated and committed teachers. Innovation in teaching and learning process, Mr. Vinay is saying. Yes. Okay. So, wow, thank you so much for such a wonderful response. This was a very encouraging response, and we have too many of it. By leveraging on our democratic dividend, equality and opportunity, wonderful. So, a number of thoughts. तो कहने का मतलब है आप सब ये जो चर्चा आज अपन करने जा रहे हैं यहाँ पे, am I audible? Yes, of course, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great, wonderful, great. So हम जो चर्चा आज करने जा रहे हैं कि कैसे हायर सोसाइटी में हम हायर एजुकेशन को लिवरेज कर सकते हैं, या हायर एजुकेशन से कैसे सोसाइटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, और यदि अपने देश को, भारत को हमने विश्व गुरु बनाना है तो उसे कैसे बना सकते हैं, उसकी नींव आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रखी, बहुत अच्छे थॉट्स दिए, और इन्हीं थॉट्स को संजो के, आप ही के थॉट्स को संजो के हम ये चर्चा थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ाएंगे। देखेंगे कितना बर्दाश्त कर सकते हैं आप मुझे। जितनी जल्दी आप मुझसे बोर हो जाएंगे उतनी जल्दी कह दीजिएगा बस हो गई है मैम गो, तो हम उतनी जल्दी आगा पीछा छोड़ देंगे। पर जितने ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे तो उतना मे बी हम कुछ एट द एंड ऑफ 30, 40, 50, 60, 90 minutes we are able to generate some thought which is effective for the society. तो किसी ने कहा था, आप ही में से किसी ने कहा, मेरा ख्याल है देखते हैं किसने कहा था, कविता जी ने, कि एंशिएंट नॉलेज जो था वो बड़ा जरूरी है यदि अपन को विश्व गुरु बनना है, और वी हैव टू लाइक गो अ लॉन्ग वे, सो वी नीड टू हैव अपनी शिक्षा का भारतीयकरण और अपने पुराना जो हमारा एंशिएंट नॉलेज है उसको लिवरेज करना बहुत जरूरी है। तो उसी श्रृंखला में एक बात आपसे बताऊं दैट व्हेन वी वर, हम प्राचीन भारत की जब बात करते हैं, नहीं मैं फुल स्क्रीन कर नहीं पा रही हूँ इंद्रजीत जी अपनी पीपीटी की, बिकॉज जैसे ही मैं फुल स्क्रीन करती हूँ तो वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। सो थोड़ा सा आप इसको अपनी स्क्रीन को एनलार्ज कर लीजिए तो आप देख पाएंगे। सो एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ इट, which was more prevalent was the Gurukula system. And for centuries, this Gurukul system played a very significant role in upliftment of educational, social, cultural landscape of the entire subcontinent. You know, our Gurukuls were the seat of learning and sharing, and not just formal education, not just formal education was passed on through Gurukul systems, as also informally the culture was, the culture was passed on in through this system. बहुत कुछ टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी से, ऑब्जर्वेशन से, कुछ आपके एटीट्यूड बिल्डिंग, कुछ डिसिप्लिन, सो बहुत कुछ जो है जब यहाँ से वहां पास ऑन किया जाता था,
उसे कंठस्थ भी कराया जाता था, लर्निंग भी कराई जाती थी, मीनिंग्स भी पास ऑन किए जाते थे, हैंड्स ऑन भी किया जाता था. सो इट वाज नॉट जस्ट cramming, it was not just notes, it was not just examination, it was much more than that. And I'm sure all of y'all will agree with this, that it was very deep seated learning. And there was, अब मैं जो शब्द बोलने जा रही हूँ उस पर गौर करिएगा, there was a deep connect, there was a connect between the learner and the नॉलेज प्रोवाइडर. माने गुरु और शिष्य जैसा नाम दिया जाता था, उसके बीच में, उनके बीच में एक कनेक्ट होता था. Ladies and gentlemen, I pose this entire audience with one thought right now. Do we still feel that connect with our students if we consider ourselves as guru, but which I don't know if we are worthy of being one. बट यदि अपन अपने आप को गुरु माने, टीचर तो डेफिनेटली हम है ही हैं, तो क्या स्टूडेंट्स के साथ हम वो कनेक्ट बना पाते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 1. आई एग्री विद यू पंकज जी, गुरु एंड टीचर आर डिफरेंट. तो मैंने इसी संदर्भ में ये कहा कि हम गुरु तो नहीं है, क्या हम गुरु हैं? हम टीचर हैं, तो क्या हम गुरु बनने की तरफ जा सकते हैं? That's my question. Okay. So, yes, Arnab ji, I feel the same thing. 5 साल 10 साल पहले, yes, I would feel that connect with the students. But right now, we are engaged in a different kind of setup, जहाँ पे connect हम जो है feel नहीं करते. Pankaj is saying that he feels that connect, and that's very good. So that's the question that we have to all pose for ourselves. All right. सो गुरुकुल के फीचर क्या होते थे, थोड़ा सा इसके ऊपर अपन ध्यान देंगे. एंड विल जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा सा मेरा बैटरी इशू हो रहा है, तो मैं 1 मिनट इसको चार्जिंग पे डालूंगी, या 5 मिनट के बाद डालूंगी, कोई बात नहीं, 5 मिनट चलेगा. ऑलराइट. सो नाउ व्हाट वर द फीचर्स ऑफ गुरुकुल? गुरुकुल was used to be a multidisciplinary curriculum. It used to be a multidisciplinary curriculum. Right? There were variety of subjects. They would teach Vedic scriptures. They would teach philosophy, literature, mathematics, astronomy, music, martial arts, comprehensive education. And like someone just mentioned, it also focused on the spiritual growth, not just on intellectual development, not just the development of mind or knowledge building, but also developing your personality, developing your morality, developing your spiritual and emotional and social quotient. So it was a very comprehensive program. This was a multidisciplinary curriculum. Experiential learning. Experiential learning. There were hands-on activities. आप सुबह गुरुकुल में आते हैं तो आप बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ कार्य करते हैं. योगा भी होती थी, लर्निंग भी होता था, आप गुरु की सेवा भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं, और आप लिखा-पोती भी करते हैं, आप घर पे भी करते हैं. Everything. There used to be hands-on experience for everything. The learning was totally experiential. आप वनस्पति के साथ रहते, नेचर के साथ रहते, नेचर से सीखते, आप देखते कैसा नेचर कैसा परफॉर्म करती है, कौन से पेड़ पौधे, कौन सा वनस्पति क्या करता है. सो देयर वाज टोटली, मैं एक किताब पढ़ रही थी, जनरली ऐसे ही पढ़ रही थी, बुक नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन और एनीथिंग, जस्ट जनरली एक बुक जहाँ पे गुरुकुल सिस्टम्स के बारे में बात थी. जनरली ऐसे ही कोई किताब पढ़ रहे थे, तो गुरुकुल सिस्टम्स के बारे में बात थी कि एक शिष्य जो थे, जब वो अपने गुरु के पास शिक्षा के लिए जाते थे, तो टू बिगिन विद गुरु उनको डायरेक्टली शिक्षा देना शुरू नहीं कर देते थे, दीक्षा, उससे पहले वो दीक्षा लेते थे. और फिर जैसे बेसिक कार्य करने, सुबह उठ के आसन बिछाना, आसन साफ करना, लीपा पोती करनी, फिर खाना फेच करना, फिर खाना बनाना, फिर
there were lots of activities that the shishya would do for the guru as also for the अन्य शिष्य बाकी शिष्यों के लिए और स्वयं के लिए. तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है गुरुकुल में टीचिंग लर्निंग का रहता था, विच यूज्ड टू बी वेरी एक्सपीरियंशियल एंड वेरी हैंड्स ऑन. देयर वाज कंप्लीट डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी थी. सिंपल खाना, सिंपल रहना, सिंपल खाना, सिंपल रहना, बिल्कुल टोटली डिसिप्लिन वे. 5 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, मेडिटेशन होगी, 4 बजे ये कार्य होगा, 4 से 5 ये कार्य होगा. पूरी 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 एक the entire discipline, the entire system, the clock was decided कि कब क्या होगा. पूरा टाइम टेबल होता था. और जो जो डिसाइपल होता था या जो स्टूडेंट था, he was totally obedient, disciplined, giving in to the teacher. Just 1 second, huh? Please 1 second. One second. Okay, so the student was completely involved with what is happening in the Gurukul, as also an overall personality development for the student was happening. There was equality and inclusivity. Now somebody is just posing a question that what about uniform education system? फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं. गोविंद स्वामी जी इस पे चर्चा करेंगे. The question that you're posing, I like to know what you want to know, but right now let's focus on this. The Gurukuls were open to students from all social backgrounds. ऐसा नहीं था कि एक जेंडर, एक कास्ट, एक क्रीड. में प्राचीन भारत की बात कर रही हूँ. And it was inclusive of all the ethos. और स्टूडेंट कोहेशन, हार्मनी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, ये सारे वैल्यूज जो है इन पे फोकस किया जाता था. इनफैक्ट जो हमारे देश का एक कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करने में, उसको ट्रांसमिट करने में गुरुकुल्स प्लेड अ वेरी वेरी पिवटल रोल. लैंग्वेजेस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंसेस हो, everything, चाहे हमारे spiritual traditions हो, चाहे हमारे spiritual ancient knowledge हो, everything was passed on and communicated very very efficiently and effectively by gurukuls. जो हमारे ancient texts थे, oral traditions थे, वो सब आप देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कंठस्थ कराए जाते थे. पूरे जो whatever our ancient scriptures were, वो गुरुकुल में जो शिष्य होते थे उनको कंठस्थ होते थे. And there was a deep appreciation because you were so much in touch with your culture, you were so much in touch with your roots, that there was a total a deep connect and appreciation for your cultural roots and identity. Uddham Singh ji has a question and he wants to know that what was the ratio of female students in the Gurukul. Uddham Singh ji, if we talk of ancient India, भारत में, प्राचीन भारत में, फीमेल्स और मेल्स के बीच में गुरुकुल में जाने में कोई रोक नहीं थी. फीमेल्स का इक्वल भागीदारी रहती थी पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी कल्चर के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर फीमेल्स की भागीदारी इक्वल रहती थी. हाँ, फिर ऐसा कुछ हुआ, आप सब अवगत है कि 200-300 सदियों की जो हमारे पे इन्वेजन्स और हुई, उसके बाद हमारी कंट्री का कल्चरल फैब्रिक चेंज हुआ. उसके विषय में चर्चा नहीं है. चर्चा ये कह रहे हैं कि फीमेल्स आपने सवाल पूछा है कि फीमेल्स की रेशियो क्या रहती थी. तो फीमेल्स की एक इक्वल भागीदारी रहती थी एंड देयर वाज नो, उन पे आने जाने के लिए रोक टोक नहीं थी. यदि आपके पास कभी समय हो तो आप ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के जो हमारे हैं उनके संवाद को कभी पढ़िएगा. So they had an equal expression and equal participation in the society. So मैं गुरुकुल्स पे वापस आऊंगी कि गुरुकुल्स जो थे, they had a deep connect, they made a deep connect with the students. Or because the connect was deep and because there was transmission of cultural heritage and because there were equality and in passing of the knowledge, as also there was discipline, they had a deep appreciation for their cultural roots and identity. I pose a second question to the audience.
And think about it. Do we and do we have that appreciation for our cultural identity? Number one. Number two, as teachers, are we able to convey that cultural identity or cultural appreciation or अपना वो pride to the students? समय बदला है, समय बदलता है, समय के साथ चेंज भी होना चाहिए. मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है. प्राचीन बातें ही भली थी, यह विचार अलीक है. आई एम गेटिंग सम रिस्पॉन्सेज. तो प्राचीन बातें ही भली थी, यह विचार अलीक है. जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है. तो आज की व्यवस्था के अनुसार where we are today, what we are facing today, and from here, if you want to go in a direction which should be enabling us to be Viksit Bharat and Vishwa Guru in the times to come, let me ask you all, what is the purpose of higher education? What is the purpose of higher education? Then I have some slides to show. But if I don't ask you questions, I don't know if I'm getting across. Okay. Today's Okay, to build capable citizens, enhance critical thinking and logical capability, to make student knowledgeable and employable, society development, to be able to think rationally towards betterment of our society. That's right, that's right, that's right. To be able to think as a nation building, absolutely correct. अब्दुल कादिर जी, आई डेफिनेटली बिलीव इन दिस. और मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि हमारा रोल जो है ये क्लासरूम डिसेमिनेशन से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा. We are in the business of building the nation. Mind enlightenment, development of society. We're definitely in that business. To make students knowledgeable, ready to give them job. Yes, that's also a small time goal. To improve status in a society through economy. Yes. To create skillful and intelligent youth. Definitely. तो कुल मिला के ओवरऑल डेवलपमेंट सोसाइटी की और हमारा ध्येय जो है वो नेशन बिल्डिंग का है. तो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, he said that the end product of education should be a free, creative man who can battle against historical circumstances and adversities of nature. तो आप सबने भी यही कहा कि पर्सनल, त्रिपाठी जी कह रहे हैं पर्सनल एज नेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, तो जहां कहीं हमें लगता है कोई हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस है, कोई एडवर्सिटीज है, कोई एनीथिंग, we should be able to challenge that. रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे, where mind is free and head is held high, into that heaven of freedom, let my country away. और उस दौर पे ले जाने के लिए मेरे हिसाब से पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है वो वही होना चाहिए. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, the only thing that interferes with my learning is my education. अर्नब गांगुली जी ने आइंस्टाइन की बात कर दी. He said, I was born wise, education ruined me. So, आइंस्टाइन भी यही कहते थे
only thing that interferes with my learning is my education, which means that we're doing something which is grossly wrong. Okay, we're doing something which is not right. Govind Swami sir is also saying that nowadays education means only elite society, high earning, good job. Is that the purpose of higher education? Is that the business we are in? Should that be really be the business we should be in? I don't know really. These are all matter of debate. These are all matter of contention. इन पे चर्चा की जा सकती है. पर मेरा मानना ये है, अपना personal, that the purpose of higher education is not to make people contain. The purpose of higher education should be to let learning happen, to let thinking happen, to let creativity grow, and to be able to enable people to think in the right direction. Some people are raising hands. वो by chance हो रहा है या आप कुछ पूछना चाहते हैं? यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो unmute करके पूछ सकते हैं, या वो by chance ही हो रहा है? यदि कुछ पूछना चाहें बीच में, so don't wait for the end. Yes. Okay. Does anyone want to say something? All right. Okay. So while we're moving, the world is moving towards the sustainable goals. हम SDGs की बात करते हैं because there's so much happening around in the world that we need to have a sustainable society. और जब हम sustainability की बात करते हैं, जब हम SDGs की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि एक inclusive, equitable education होनी चाहिए, जिसका purpose होना चाहिए lifelong learning opportunities for all. And incidentally, this is the 4th SDG, that we need to give quality education, जिसका काम होना चाहिए inclusivity, education and lifelong learning. मैं स्कूल में देखती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ, when they're studying, and then when we teach, हमारे पास जो higher education में universities में product आता है, sometimes it's very disheartening to see the product. Honestly speaking, it's very disheartening. उनके fundamentals are not very well developed. उनकी सोच is not developed. उनको कोई assignment देते हैं तो वो assignment ChatGPT से करके ले आते हैं. It's easy. But does it mean that उसको कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए देते हैं? कोई जैसे हम मैनेजमेंट में है तो कोई बिहेवियरल इशू पे उससे डिस्कशन देते हैं कि आप जाइए, बैठिए, लोग को ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशन लिख के लाइए. वो चैट जीपीटी पे डालते हैं, चैट जीपीटी ऑब्जर्वेशन दे देता है, वो लेकर आ जाते हैं. So we going grossly wrong somewhere. हम कैसे देखते हैं कि सोसाइटी एक अलग एंटिटी है, यूनिवर्सिटी एक अलग एंटिटी है, whereas universities are subset of societies. We will reflect what जो society के aspirations हैं, और हम वही देंगे जो सोसाइटी के एस्पिरेशंस है. इसीलिए किसी ने यहाँ पे लिखा था एलीट सोसाइटी. डॉक्टर यादव ने ये कहा, आवर गोल फॉर एलीट सोसाइटी, कि हम एक एलीट सोसाइटी बनाना चाहते हैं. इसलिए हम यूनिवर्सिटीज में उसी प्रकार की एजुकेशन देते हैं which will fetch the students a good job, a good career, good earning, and hence all sorts of comfort. Ladies and gentlemen, इसको थोड़ा सा बैकवर्ड इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सोच ऐसा करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की सोसाइटी चाहते हैं. हम जिस प्रकार की सोसाइटी चाहते हैं, हमें उस प्रकार की टीचिंग देनी पड़ेगी, हमें उस प्रकार के वैल्यूज देने पड़ेंगे, हमें उस प्रकार की नॉलेज देनी पड़ेगी.
हमारे यहाँ हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जम्मू यूनिवर्सिटी, उन्होंने डीयू के तर्ज पे एक डिग्री का स्टार्ट किया, विच इज इनोवेटिव फॉर्म ऑफ टीचिंग लर्निंग। उसके विषय में चर्चा करूंगी मैं आगे, पर थोड़ा सा उसके विषय में आपको बताऊं मैं। दैट इज they've made a degree which they've called as design your degree, कि एक स्टूडेंट को लिबर्टी दे दी कि वो अपनी डिग्री खुद डिजाइन करें। यानी वो एक सब्जेक्ट साइंस का पढ़ सकते हैं, एक आर्ट्स का पढ़ सकते हैं, एक म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स पढ़ सकते हैं, एक मैथ्स पढ़ सकते हैं। सो ही और शी कैन डिजाइन देयर ओन डिग्री। देयर इज नो करिकुलम, it's only experiential based learning. I don't know how successful that is going to be and whether it's going to be successful or not, but the point is that right now it's almost an year that they're going into the course, और मुझे अवसर मिला उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, उनकी प्रेजेंटेशंस थी और उन प्रेजेंटेशंस में जाके भागीदारी करने का। तो उन्होंने जिस तरह से उनको छोटी छोटी असाइनमेंट्स दी थी, उनको एक्सप्रेस किया, और ये वो बच्चे थे और उनमें से एक बच्चा था जो कुछ डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। वेल दैट्स वन वेरी बिग, मैंने सोफा सोसाइटी इसके विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। तो वो बच्चा थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा था और फाइनली उसने ये वाली डिग्री ली। सो आफ्टर 1 year ही वाज सच कॉन्फिडेंट बच्चा। तो उनके फैकल्टी ने मुझे बताया कि ही वाज वन चाइल्ड हु कुड नॉट स्पीक, बट टुडे ही इज सो एक्सप्रेसिव because there was such impetus that was given on him and he was able to unleash his creativity. So the goal of education should not be to bind people. The goal of education should be to liberate people. It should be able to liberate. और जिस प्रकार की सोसाइटी हम चाहते हैं ना, उसी प्रकार की वैल्यूज, उसी प्रकार की हमें लर्निंग बैक एंड पे देनी पड़ेगी। इट डजंट हैपन द अदर वे कि लर्निंग देंगे और वैसी सोसाइटी बनेगी। अभी हम इस तरह से चल रहे हैं और जो हमें एंड रिजल्ट दिख रहा है दैट्स नॉट वेरी डिजायरेबल। इसलिए हमें बैकवर्ड होके चलना पड़ेगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्लाइड, हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हम एक एकेडमिया है, यूनिवर्सिटी है या रिसर्च सेंटर्स हैं। हम एक सिविल सोसाइटी के अंदर रहते हैं। Okay, we are bound by legal frameworks, we are bound by fundings. हम जैसे जैसे सोसाइटी की सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वैसे वैसे यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन में बदलाव आता है, वैसे वैसे एम्प्लॉयबिलिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन आती है, वैसे वैसे हमारी रिसर्च में बदलाव आता है। जैसे जैसे सरकार होती है, जैसी जैसी पॉलिसीज होती है, जैसे जैसा पॉलिसी एनवायरनमेंट होता है, वैसा वैसा हम पे उसका असर होता है। जैसे जैसे बिजनेस, जैसे जैसे इंडस्ट्री होती है, हम वैसे वैसे अपने कोर्सेज को अलाइन करते हैं। तो कुल मिला के हम एक सिविल सोसाइटी का पार्ट बनते हैं और ओवरऑल एक लार्जर एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करते हैं। वो एनवायरनमेंट जो है वो लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, सोशल है, सोशो कल्चरल है, पॉलिटिकल है, विभिन्न प्रकार का है वो एनवायरनमेंट। और उस एनवायरनमेंट के अंदर हमारी एक सिविल सोसाइटी ऑपरेट करती है और उस सिविल सोसाइटी के अंदर हम यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स ऑपरेट करते हैं। तो भारत देश के अंदर जैसा कल्चर होगा, जैसा लीगल फ्रेमवर्क होगा, जिसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज का भी कल्चर बनेगा, उसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज भी ऑपरेट करेंगी। तो हम देश को, मैं वापस वही बात कहती हूँ कि हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उसी प्रकार का इनपुट हमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बच्चों को देना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि देश इकोनॉमिकली ग्रो हो, तो हमें बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनने की शिक्षा देनी पड़ेगी। चाहे वो जूलॉजी का बच्चा है, चाहे वो केमिस्ट्री का बच्चा है, चाहे वो फिजिक्स का बच्चा है, चाहे वो हिंदी का बच्चा है, चाहे वो मास कम्युनिकेशन का बच्चा है, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी का बच्चा है, चाहे वो मैनेजमेंट का या अंग्रेजी का बच्चा है। इन एनी डिसिप्लिन अक्रॉस द डिसिप्लिन्स, ladies and gentlemen, if we want a self-reliant society, we should give entrepreneurial skills to the student, irrespective. If we want a creative society, we must allow him to express creativity. If we want a society which is more expressive, that's what
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम चाहते हैं, जिस प्रकार का समाज हम चाहते हैं, हम समाज के रचयिता हैं और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सोसाइटी से अलग नहीं है, वो सोसाइटी का अभिन्न अंग है और हमारा दायित्व as enablers of learning process in the higher education is very, our role, our responsibility is very crucial. That's what I mean to disseminate to you all. तो ट्रांसफॉर्मेटिव रोल है हमारा, रिस्पॉन्सिव रोल है हमारा. यदि आप ग्रीन सर्कल को बीच में देखेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि ग्रीन सर्कल पे फोकस करेंगे इस स्लाइड की, so our role is transformative, our role is responsive, as also we are in the demand led action. Now demand led में मैंने क्या कहा, AI आ गया, suddenly there's a boom, AI enabled services, AI enabled this. तो हमें AI के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने हैं, हमें बच्चों को सिखाना है, हमें बच्चे को उसके विषय में ज्ञान देना है, हमें इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट स्टार्ट करने हैं. सो जैसी डिमांड आती है हमें उस तरह का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट को देना, और प्रोडक्ट कैसा, बेहतरीन प्रोडक्ट देना है मार्केट को. तो दिक्कत कहाँ आ रही है कि एकेडमिया, इंडस्ट्री, एकेडमिया, कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है और उस गैप को नैरो डाउन करने के लिए एज teachers we can't be oblivious of this society. We have to be more in touch with the ground. आप ग्राउंड की असलियत तभी जान सकते हैं जब आप ग्राउंड में उतरते हैं. क्या मैं सही कह रही हूँ या नहीं? यस और नो? क्योंकि मैंने बहुत देर वन साइडेड बोला तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए. Yes, ma'am. थैंक यू. Yeah, thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Ma'am, from Yes, ma'am. from पे आते हैं. Sorry, मैम, ग्राउंड में फुटबॉल खेलना है. सॉरी. सो ग्राउंड रियलिटी से मेरा मतलब है कि we need to be in touch with the reality. What is happening around us? Okay, what is the need of the hour? You know, and that is one. For example, जैसे हम मैनेजमेंट से तो स्टूडेंट को असाइनमेंट देते हैं कि अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर, कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गई तो एडॉप्शन अंडरस्टैंड करिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की. I need to know myself that इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की एडॉप्शन स्टडी करानी है इसको. क्यों? क्योंकि उससे इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा. क्यों? क्योंकि उससे कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो गया. कोई पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है या पब्लिक पॉलिसी का स्टूडेंट है या एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट, मी ऑल्सो, like elections are around the corner. So I can make an analysis, or I can make my student understand different campaigns that are running. So how does the social media effect or social media marketing affect the minds of customer? तो उससे क्या है, जब बच्चा ग्राउंड रियलिटी से जुड़ता है तो उसको धीरे धीरे ये पता चलता है, ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इट हैज एन इम्पैक्ट. So we are not mere consumers, we can also be observers. तो बच्चे को ग्राउंड रियलिटी से टच कराने के लिए what I mean to say is we need to be in touch with the ground reality, because whatever, again I will say, whatever we are producing, यानी हमारा स्टूडेंट, हमारा प्रोडक्ट जो है, whatever we are producing and giving to the society does not only have a societal impact, it also has a economic impact. So there's a socio-economic impact with the kind of engagement that we do, with the kind of research that we do, with the kind of teaching that we do. Okay, so the action that we take is transformative action. It should be transformative, which means the education that we impart to the students has to be transformative. अब ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब क्या है? आप में से किसी ने अभी लिखा था यहाँ पे कि हमारा रोल
एक एंटायर पर्सन डेवलप करने में है, एक एंटायर पर्सनालिटी डेवलप करने में है, ठीक है। हमारा रोल किसी ने भी ऊपर लिखा है, somebody just wrote कि हमारा रोल इंडिविजुअल्स को हाँ, सोमानंद जी ने लिखा that aim is to holistic development of an individual. It is not related to society economy. मैं थोड़ा सा सोमानंद जी आपसे यहाँ पे डिफर करूंगी और मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि हमारा रोल सिर्फ इंडिविजुअल्स को डेवलप करने में नहीं है, और बल्कि एट लार्ज सोसाइटी और सोसाइटी से ऊपर उठ के नेशन बिल्डिंग करने में है. All right. And I am a firm believer of this. Firm. When I joined teaching profession some around 2 decades back, उस दिन से I was young at that time, and I was very clear in my mind that whatever I'm delivering in the class, I'm not developing individuals. I'm developing a society. I'm developing a nation. तो हम केवल एक इंडिविजुअल को डेवलप नहीं करते हैं, हम एक इंडिविजुअल को कोई सब्जेक्ट केवल नहीं सिखाते हैं, हम एक समाज निर्माण की तरफ और समाज के ऊपर देश निर्माण का कार्य करते हैं. और आई एम वेरी कन्विंस्ड विद इट. यदि मैं एक भी स्टूडेंट को किसी भी तरह से, जिसका भी अनम्यूटेड है ना, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है. एनीबडी हु इज अनम्यूटेड प्लीज म्यूट इट. यदि कुछ कहना चाहते हैं तो बात टाइप कर लीजिए, वो बेटर रहेगा. मैं सब मैसेजेस पढ़ पाऊंगी, अदरवाइज म्यूट कर लीजिए. Thank you. So I'm very deeply convinced that if I'm able to influence or enable, I may not say this. If there's somebody coordinating, kindly mute to enable. मैं कर नहीं पाऊंगी. Okay, thank you. So I'm very deep. So if we are able to influence, or say, okay, I will not say influence, enable. If we are able to enable even one person towards the right way of thinking, okay, towards right way of thinking, I am enabling a family or a prospective family. I am enabling a society, and I am then enabling a country. Okay, so our role is very, very, very responsible role. Our role is very big. It's humongous, I feel. और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन की तरफ जाते हैं ना, हमारे बच्चे को सिर्फ नॉलेज नहीं दे रहे, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम उसको अनेबल कर रहे हैं सोचने के लिए और उसके अपने विजडम को एक्सेस करने के लिए, कि खुद से देखिए जो पूरा नॉलेज कॉन्टिन्यूम है ना, वो कैसे चलता है आप सबको पता ही होगा, फिर भी बता दूं कि इंफॉर्मेशन सबसे पहले डेटा से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नॉलेज बिल्ड करते हैं, नॉलेज के बिल्डिंग बेसिस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और फिर दैट कल्मिनेट्स इनटू विजडम. ओके, सो फ्रॉम डेटा टू विजडम, that's the whole continuum of learning, I may say. All right. So what happens कि जब हम हायर एजुकेशन में इस continuum में चलते हैं ना, so we need to enable a student from knowledge, information. हमारा काम सिर्फ information देना नहीं है, हमारा काम information देके उसके माइंड को स्पार्क करके छोड़ देने का, कि वो वहां से उस इंफॉर्मेशन से कैसे विजडम तक पहुंचता है. जहां जहां उसको हमारी जरूरत है वहां नज करना है, वहां थोड़ा नज करते जाना है. ऑलराइट. सो this transformative, this kind of education where we are able to spark, and where we are able to enable minds and influence minds towards right directions, that will have transformative impact on individuals, leading to transformative impact on communities, and in turn the whole world. All right. So relationship between higher education and society is very, very symbiotic. Okay.
जैसे मैं वापस से इस स्लाइड पे आऊंगी, मेरे को बड़ी प्यारी स्लाइड लग रही है, तो वापस से इस पे आऊंगी कि इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. हु एग्जिस्ट फॉर whom? Now that's the question. Do universities, colleges exist for society, or does society exist for them, for us? It's a symbiotic relationship. हम सोसाइटी से लेते हैं या हम सोसाइटी को देते हैं? Yes, mutual exchange. It's a symbiotic relationship. दोनों एक दूसरे के ऊपर थ्राइव कर रहे हैं. दोनों एक दूसरे के ऊपर, यस कविता जी, दोनों एक दूसरे के ऊपर थ्राइव कर रहे हैं. We are feeding on the society, we are in turn giving back to the society. So we must understand that we are not separate from society. Our role is for the society. We are in our business for transforming the society. You know, we as universities and institutes of higher learnings, we're crucible of intellectual inquiry. Hello, question, enable people to question, ask, you know, research, know, find out. I don't know. When student asks you questions, tell him to find out, not because you don't know, not because you can't find out. Tell him to find out in his own ways. बट ऐसा नहीं होता. पता है क्या होता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट पूछे हमें नहीं आता, हम कहते हैं कीप क्वाइट, दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक. ओके, लेट हिम आस्क एंड देन एनेबल हिम. उसको थोड़ा थोड़ा नज करते जाओ राइट डायरेक्शन में, नज करते जाओ राइट डायरेक्शन में. वो हम कब कर पाएंगे? अगर हमें खुद ज्ञान होगा. तो खुद पढ़ना, खुद ज्ञान अर्जन करना, वेराइटी ऑफ थिंग्स देखना, पढ़ना, ऑब्जर्व करना, सुनना, सीखना, ग्राउंड के साथ इन टच रहना, ये हमारा अपना काम है. दिस इज व्हाट वी आर मेंट टू डू. ये हमें करना है. व्हाई? बिकॉज वी आर बैस्टियंस ऑफ कल्चरल एनरिचमेंट. ठीक है, हमें अपनी ज्ञान, अपनी परंपरा, अपनी रूट्स, अपनी जमीन, अपनी पूरी हमें अपनी पूरा कल्चर का ज्ञान होना जरूरी है. ओनली देन विल बी एबल टू एनरिच. एंड ट्रस्ट मी, वी एज अ कंट्री, एज देश, हम इतने कल्चरली डाइवर्स हैं. आप सब जानते हैं. आप में से कुछ लोग गुजरात में बैठे होंगे, कुछ आप कहाँ से फ्रॉम वेयर आर वी ऑल कनेक्टेड? लाइक आई एम फ्रॉम जम्मू, बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, लखनऊ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, वाओ, झारखंड, अरुणाचल, तेलंगाना, बोध गया, सिक्किम, असम, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, एचपी, हमारे पड़ोसी. और वंडरफुल. सो हम कितने डाइवर्स हैं. और हम 100-200 किलोमीटर के बाद हमारा कल्चर, उसमें कुछ नयापन आ जाता है. हम सुषमा जी हिमाचल में, हम जम्मू में हैं, तो जम्मू और हिमाचल का बहुत कल्चर सेम है और बहुत कुछ डिफरेंट है. वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी का कल्चर में फर्क आ जाता है. मराठी कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम गुजराती, जबकि बिल्कुल बाजू बाजू में कुछ चीजें मिलती भी हैं, कुछ अलग अलग भी हैं. So how do we enrich our culture? We are bastions of cultural enrichment. And somebody said we are not in for economic development. हमारा काम है स्टूडेंट को पढ़ाना. अभी किसी ने मैसेजेस में लिखा, तो हमारा काम इकोनॉमी को डेवलप करना नहीं है. मैं इस बात से अग्री नहीं कर. We are engines of economic prosperity. हम जो यहाँ हायर लर्निंग में पढ़ाते हैं, उसके देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है. हम ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जीडीपी ऑफ द कंट्री, उसको कैसे कहाँ पे स्टीयर करना है. वी आर द वंस, एज ए नॉट मी और यू अलोन, बट आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज एज अ क्रूसिबल ऑल्सो फॉर सोशल मोबिलिटी. एंड आप यूनिवर्सिटीज को देखें, so they are the hubs of civic engagement.
नैरेटिव्स जिसको हम कहते हैं वो यहीं पे डेवलप होते हैं, डिबेट्स डिस्कशंस जो है वो यहीं पे डेवलप होते हैं। कोई किसी भी चीज की जो चर्चा है, जो परिचर्चा है, जो परिकल्पना है, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर बनती है। सो वी हैव अ वेरी पिवटल रोल टू प्ले इन दिस सोसाइटी। आज मैं फिर इलेक्शन की बात करती हूँ क्योंकि वो हमारा करंट परिपेक्ष है। तो हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य है, और यू नो कि जैसे हम बच्चों को इनकरेज करें, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं दे आर ऑल एलिजिबल टू वोट, दैट वी मस्ट एनकरेज देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। इट्स देयर राइट एंड इट्स देयर ड्यूटी। मैं नहीं कह रही किसी एक को हम किसी एक पार्टी की तरफ उनको स्टीयर करें या हम उनका माइंड इन्फ्लुएंस करें टू वोट फॉर एक्स पार्टी और वाई पार्टी और जी पार्टी, बट हम उनको ये मोटिवेट करें कि गो आउट एंड एक्सरसाइज योर राइट, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट योर राइट, दिस इज ऑल्सो योर ड्यूटी। वी आर हब्स ऑफ सिविक एंगेजमेंट। हम सोसाइटी से एलियनेटेड नहीं रह सकते। जो समाज में चलता है यूनिवर्सिटीज उसको आगे बढ़ाते हैं। वी एम्पावर, हमारा काम है एम्पावर करना। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल 100 of you, all of us who are sitting here, just close your eyes for a moment. ज्यादा देर नहीं, just close your eyes for a moment and think you have the power to empower people. कि हमारे पास वो शक्ति है या हमारे पास वो प्रिविलेज है that we can empower other people. कैसे? क्या हम अपना रोल सिर्फ अटेंडेंस, असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस तक कन्फाइंड रखते हैं, या हमारा रोल उससे आगे बढ़कर है और होना चाहिए और हो सकता है? क्या समाज में हम इससे बड़ा कोई रोल प्ले करना चाहिए एज सीड्स ऑफ हायर लर्निंग? डेफिनेटली वी प्रोवाइड एक्सेस टू नॉलेज, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हम अनेबल करते हैं बच्चों को कोई भी डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए। आई एम श्योर हम में से कोई भी जात पात के हिसाब के बेसिस पे भेदभाव नहीं करता। मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि किसी स्टूडेंट का सरनेम क्या है, कि उसको असाइनमेंट में ज्यादा नंबर देने क्योंकि उसका सरनेम ये है, कम नंबर देने की सरनेम ये है, उसके एग्जाम में नंबर काटने कि उसका सरनेम ये है। We never do that and most of us do not do that. So we do not, हम भेदभाव नहीं करते। डाइवर्स बैकग्राउंड से हमारे पास स्टूडेंट आता है, हमारा काम है हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी। कि एक नौकरी, फॉर एग्जाम्पल एक जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो हम बोलते सारे बैठो उसमें, सारे बैठिए इंटरव्यू में, सारे बैठिए प्लेसमेंट में, सब लोग करिए। कोई अपॉर्चुनिटी है कहीं जाना है, सब लोग जाइए, ठीक है। या अगर कम लोग का चयन कर सकते हैं तो मेरिट के बेसिस पे करते हैं, बट इस बेसिस पे नहीं कि ये कौन सा इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करता है, ये कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है, ये नहीं करते। ऐसा हम में से कोई भी नहीं करते, ठीक है। I am not taking responsibility for everybody, but 99% of the teachers in higher education, we don't do this. We don't do this. All right. So, universities is a one place जहाँ पे upward mobility के doors open हो जाते हैं, okay, and economic barriers break down. हर किस्म के, not just economic, but all types of different barriers break down. All right, and the doors of upward mobility open up. कि आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, सोशली ऊपर उठना है, इकोनॉमिकली ऊपर उठना है। हम सब हायर एजुकेशन से के माध्यम से ही तो आए हैं यहाँ पे, जिस सीट पे हम आज बैठे हुए हैं, है ना। सो it gives you an opportunity irrespective of your socio-economic background. And somebody was talking of, in my first question, somebody spoke of inclusivity and diversity. So definitely आप ही की बातों को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि हम एम्पावर कैसे कर सकते हैं और सोशल मोबिलिटी कैसे एनहांस करते हैं जब हम डिफरेंट कल्चरल एथनिक बैकग्राउंड्स
हर स्टूडेंट को जिस मर्जी एथनिक कल्चरल जिस मर्जी बैकग्राउंड से आए, जब हम उसको इंक्लूड करें, और ऐसा हमें करना चाहिए और ऐसा हम करते हैं. ओके, गिव मी 1 second प्लीज. मैं जब बोलती हूँ ना क्लास में भी, तो मैं इतना एक्साइटेड हो जाती हूँ, मेरा गला ही सूखने लग जाता है, मैं इतना ऊंचा ऊंचा बोलती हूँ. ओके, ओके. तो ये कहीं पे मैंने एक ये पढ़ा कि वर्थलेस डिग्रीज इन इंडिया आर क्रिएटिंग एन अनएम्प्लॉयबल जनरेशन. I don't know how far that is true, but one thing that is true is there are a lot of degrees or a lot of courses or there are a lot of things that we are doing that need a change. And I also believe that that change has to come from us. Okay? That change has to come from us. All right. Um, Nobody else is going to do that change. All right. Robert Kiyosaki says that in the world of entrepreneurs, we don't need a college education. We need a proper education. Okay. So I come back here and I take you back here and I take you to the next slide. That if we want something to change, Arnabji, if we want Yadavji something to change, we need to do things differently. All right. If we want this scenario to change, like you've written, we're creating a lot of unemployable youth or unemployable manpower in this country. If we believe in this, if we think that's right, we need to do something different, or maybe what we are doing, we need to do it differently. If people say that we don't need a degree to be successful, or we don't need degree to be prosperous, or we don't need a degree to be intelligent, which means that we are confusing education and intelligence. So maybe along with imparting knowledge, we have to do it in a little different way. And NEP 2020 primarily focuses on this. The objective of NEP 2020, जितना मुझे समझ आया, बहुत ज्यादा मुझे समझ ही नहीं आता, मेरा दिमाग थोड़ा कम ही है, लेकिन जितना मेरे को समझ में आया NEP 2020, उसके हिसाब से कि जिस तरह से हम डिलीवरी करते हैं, that process of delivery of knowledge has to change. And if we want to bring an impact or add a change, we need to change our ways. Okay? We need to change the way knowledge is created. We need to change the way knowledge is disseminated. Higher education institutions are hubs of knowledge creation, innovation. Okay? जो एडवांसमेंट्स होती हैं साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, ह्यूमैनिटीज के फील्ड में, दे हैपन इन थ्रू यूनिवर्सिटीज. हम लोग रिसर्च करते हैं, जो नॉन साइंस पीपल होते हैं, सोशल साइंसेस वाले वो रिसर्च करते हैं, जो साइंसेस वाले होते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं. इनफैक्ट सोशल साइंसेस वाले भी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं. हम लोग कोलैबोरेशंस करते हैं, हम लोग we try and do different तरीके से हम knowledge create करते हैं और innovate करते हैं, so that there is some breakthrough or there are breakthroughs that benefit the society as a whole. All right. So we are also incubators. आप में से बड़े सारे institutions, सबके institutions में incubators होंगे, incubation cells होंगे. So we are incubators for entrepreneur endeavors. हमारी university में भी incubation cell है. So if anybody, हमारी university का बता रहे, anybody anywhere in the society, जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में,
आसपास में कहीं पे भी आइडिया है, वी आर रेडी टू फीड दैट आइडिया। हम मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, हम पैसा प्रोवाइड करते हैं, हम सीड मनी देते हैं और उस आइडिया को पनपने के लिए एक पूरा इंडेवर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वी कम अप विद सम वेरी गुड ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और सम ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स, बट यस आई विल वेरी प्राउडली कन्फेस दैट हमारे यहाँ पे एक इसरो सेंटर है, तो हमारे इसरो सेंटर के बच्चे राइट नाउ एक ड्रोन पे वर्क कर रहे हैं विच इज गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, और वो हमारा इंक्यूबेटर सेल उसको फंड कर रहा है। सो एक कल्चर ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, किसी के पास कोई आइडिया है, अब यूनिवर्सिटीज, हमारी यूनिवर्सिटीज में पेटेंटिंग पे बहुत है, किसी के पास कोई आइडिया उसे कॉपीराइट कराइए, पेटेंट करवाइए, you know. So many education institutions are coming up with research and product. Yes, Arnab ji, seed money is very important to develop an idea. तो वही हम कह रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी के पास फंड्स नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ने ईयर मार्क किए हैं फंड्स, इंक्यूबेटर सेल्स बनाए हैं, और उन इंक्यूबेटर्स के पास इस तरह के फंड्स हैं या इस तरह के फंड्स हम जनरेट करते हैं, सो दैट अ गुड आइडिया विच इज वर्थ इंक्यूबेटिंग शुड बी प्रोवाइडेड फंड्स टू बी इंक्यूबेटेड। क्योंकि देखिए, आइडिया किसी के पास भी हो सकता है और कहीं से भी आ सकता है। हमारे यहाँ पे एक हॉर्टिकल्चरिस्ट है, केसी, मैं पूरा नाम उनका भूल गई, केसी जी बोलते हैं उनको, केसी जी। तो उन्होंने एक फ्रूट, जो 2 फ्रूट्स का मिक्स करके, पियर एंड एप्पल मिक्स करके एक नई वेराइटी बनाई। और एप्पल जैसे थोड़ा सा ठंडे इलाकों में ग्रो करता है, जैसे हिमाचल में बहुत एप्पल होता है, कश्मीर में एप्पल होता है, तो जम्मू में रिलेटिवली वार्मर टेम्परेचर होता है। तो वो वेराइटी ऑफ जो पियर एंड एप्पल उन्होंने बनाया, that can be grown in Jammu, yes, maybe by grafting or some other method. तो वो जो उन्होंने वो वेराइटी क्रिएट किया, so and he's an old man, he's a retired man, he's an old man, so idea कहीं भी किसी को भी आ सकता है, तो किसी बच्चे को भी आ सकता है, किसी बड़े को भी आ सकता है। As universities, we need to give them impetus, is what I mean to say, because we are the seeds of knowledge creation, we are the seeds of innovation, and we need to सिर्फ जॉब क्रिएटर्स नहीं होने चाहिए हम। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ जॉब क्रिएटर्स नहीं है, या जॉब प्रोवाइडर्स तो हम डेफिनेटली नहीं है, मतलब एक पूरी सोसाइटी को सिर्फ जॉब अनेबल नहीं करना है, ऑल्सो अनेबल देम। महात्मा गांधी भी ये कहते थे, सेल्फ रिलायंट होने के लिए हमें एंटरप्रेन्योर होना पड़ेगा। तो यदि इफ यू वांट our country to be विकसित भारत by 2047, all of us will have to be self reliant, और बच्चे के अंदर भी वही डालना पड़ेगा। Now my child, he says that I want to do business, I want to be an entrepreneur. I don't know, he's वो छोटी सी क्लास में है, वो छोटी क्लास में है अभी, प्राइमरी स्कूल में है, एंड मिडिल स्कूल गया है अभी, एंड ही सेज आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो मैंने कुछ करना है, बिजनेस करना है। तो मुझे कभी कभी डर भी लगता है, बिकॉज हम लोग सब हम में से हमारी फैमिली में कोई बिजनेस क्लास में नहीं है, मुझे डर भी लगता है, बट देन आई अलाउ हिम, ओके फाइन, सोचो क्या बिजनेस करोगे, शार्क टैंक देखो, पढ़ो, सुनो। तो मैंने उसे किताब ला दी, जो छोटी सी बुक की, जो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, इनको पढ़ो। सो जिसका नो, वी नीड टू गिव देम इम्पेटस, इज ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल, कि सीड दे दीजिए, छोटा सा सीड प्लांट कर दीजिए माइंड में। वो कब ग्रो करेगा, कहाँ ग्रो करेगा, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। तो इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में जो गैप है, जो खाई है, उसको भरने का काम हमने करना है। अगर हम रियली ये चाहते हैं कि एज हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, हमें उस खाई को भरने का काम करना है, इज व्हाट आई मीन टू से। वो चाहे टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हो, चाहे एंटरप्रेन्योरियल तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत मैसिव ह्यूमंगस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, civic engagement, engaging with the civil society. Like I said, we serve as platforms for discourse, for debate, for activism, for nurturing informed citizens, engaging them, who will bring a positive social change. तो यदि भारत को विकास करना है और विकसित भारत बनना है, तो वो विकसित भारत की जो सीड है,
जो योद्धा हैं वो यही इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग से ही निकलने वाले हैं. सो इंस्टिलिंग वैल्यूज ऑफ सिविक एंगेजमेंट, ओन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे के प्रति सौहार्द, अपनी समाज के प्रति जो कर्तव्य है, एथिकल लीडरशिप, ये सारी वैल्यूज जो हैं ये बच्चे के अंदर इंस्टिल करना. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, शुड आई प्लीज टेल यू, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू नो दिस, दैट a student will learn less from the PPT. He will learn very less from what we tell him in the class. He will learn more when he observes us. तो मेरा स्वयं का कंडक्ट कैसा है वो बहुत उसके आचार, विचार और व्यवहार को इफेक्ट करेगा. वो कैसा कंडक्ट कर रहा है, वो कैसा सोचता है और वो कैसा बिहेव करता है सोसाइटी में, दैट विल डिपेंड उसका. हम चाहे ऐसा ना माने, बट ना चाहते हुए भी हम कहीं ना कहीं उनके रोल मॉडल्स होते हैं. एंड इफ नॉट एग्जैक्टली, आई विल यूज दिस वर्ड रोल मॉडल्स, दे एम्यूलेट अस, हमसे सीखते हैं. ठीक है, और जैसे हमें ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए हम किस प्रकार का व्यवहार करें, हम किस प्रकार का कंडक्ट करते हैं, वी नीड टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. रोल प्लेस के माध्यम से, कभी कभार नाटक के माध्यम से, कभी कभार किसी कुछ मूवी दिखा के, कुछ फॉर एग्जाम्पल हमें देशभक्ति की वैल्यू इंस्टिल करनी है तो कोई इस प्रकार की मूवी दिखा दीजिए, उस प्रकार का रोल प्ले करा दीजिए, खुद का कंडक्ट उस तरह से रखिए. तो आप जो वैल्यू इंस्टिल करना चाहेंगे वो बच्चा आपको देख के वो वैल्यू सीखेगा. तो मेरा कहने का मतलब ये है, द रोल एज अ we have a humongous responsibility of civic engagement, कि हमें कैसे दूसरों को एंगेज करना है, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव्स आप करते हैं क्या? कहीं वॉलंटियर प्रोग्राम्स आप करते हैं क्या? कहीं एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है तो बच्चे को दीजिए, वो नहीं है तो क्रिएट कीजिए. हम लोग जैसे इंडस्ट्री के साथ निरंतर मैनेजमेंट में है तो निरंतर इन टच रहते हैं, और कहीं भी कोई भी छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली रश है तो हम रिटेल मैनेजमेंट का एक कोर्स रन करते हैं ग्रेजुएट लेवल पे, बी वोकेशनल इन रिटेल मैनेजमेंट. तो जैसे दिवाली आ गई या कोई और फेस्टिवल आ गया जहाँ रिटेल स्टोर्स में हेवी रश रहता है, सो वी आर इन टच विद द एचआर मैनेजर. तो वो हमें कहते हैं अपने बच्चे भेज दीजिए एक हफ्ते के लिए इंटर्नशिप के लिए. सो हम अपने बच्चे को प्रोवाइड करते हैं वो अपॉर्चुनिटी की, जाओ शॉप फ्लोर पे जाओ, देखो, सीखो, वर्क एज अ सेल्स पर्सन. दैट्स एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. चाहे आप कहिए कि वो सेल्समैन बन रहा है, बट यदि वो रिटेल का सप्लाई चेन और रिटेल का बाकी बिजनेस सीखना चाहता है तो उसको ग्राउंड लेवल से सीखना है, तो उसको जाना है, देखना है, और दिस इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. हमारे टूरिज्म का कोर्स है, टूरिज्म मैनेजमेंट, वहां हम बच्चे को होटल में भेजते हैं कि जाइए, आप जाइए, देखिए बेड कैसे बनाते हैं, किचन में बैक एंड काम कैसे होता है. चाहे उसको शेफ नहीं बनना है, चाहे उसको हाउस जॉब नहीं करना है, बट ही नीड्स टू नो ऑल दी प्रोसेसेस कि चलते कैसे हैं. तो जब बच्चे को आप इसी तरह कम्युनिटी सर्विस के लिए भेजेंगे, हम स्टूडेंट्स को बीच बीच में ओल्ड एज होम लेके जाते हैं, जब आप बच्चे को कम्युनिटी में भेजेंगे, when he will see issues जो आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में डिस्कस भी नहीं होते, बच्चे को पता भी नहीं है, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंडियन के लिए these are not issues. तो जब वो ऐसे इश्यूज देखेंगे which are things like poverty, things like social inequality, injustice, other issues, their mind starts working differently. And some of them start working towards solutions. कि इसका क्या solution हो सकता है? They will come to you, ladies and gentlemen. This is where our role begins. When they come to you, where do you steer them?
आप उनको किस डायरेक्शन में स्टीयर करते हैं, देश, आपका समाज, आपका देश उसी डायरेक्शन में जाएगा। ये बात ऐसा मैं मानती हूँ, और यही बात ऐसा ही होता है कि आपके पास आए और आपसे ये बताए कि मैडम आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कम्युनिटी सर्विस के लिए भेजते हैं, दे कम बैक एंड टेल हाउ कम इनका बच्चा ऐसे है। सो वंस वी सेंट एक ग्रुप को लेके गए हम ओल्ड एज होम में, सो द गर्ल स्टार्टेड क्राइंग देयर। तो पूछा ऐसे क्यों रोने लगी, मैम दिस आंटी, ये जो आंटी यहाँ बैठी है, ये श्रीनगर में हमारी नेबर हुआ करती थी, वो श्रीनगर से माइग्रेट थे। तो उन्होंने कहा ये श्रीनगर में हमारी नेबर हुआ करती थी, मैं इनको देख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। समथिंग स्टीयर्ड विद इन दैट गर्ल। आज के डेट में दैट गर्ल is a yoga trainer, she's a meditation consultant, and she's running her own NGO which helps the migrants of Kashmir. तो जब वो आपके पास आए, आप कैसे, हाँ जी, नॉट मी बट यू, मेरे को समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते, पर जो भी इसको हम एड्रेस करेंगे फिर बाद में। सो आप कैसे उन्हें एड्रेस करते हैं, आप कैसे उन्हें स्टीयर करते हैं, आप कैसे, जब जब वो आपके पास अपनी क्यूरोसिटी, अपनी अपनी जिज्ञासा लेके आता है, तो कैसे उस जिज्ञासा को रिजॉल्व करते हैं, दैट इज व्हाट विल शेप द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, एंड दैट इज आवर हायर रोल। ऑलराइट, then ladies and gentlemen, we need to understand that we are creating global citizens. Now world आज की डेट में is a global village. It's no more confined to any kind of boundaries. Like I just said, I am sitting in Jammu and Kashmir. I'm talking to somebody who's sitting in Bihar, in Telangana, in Gujarat, in Maharashtra, in Bareilly, in Varanasi, in Sikkim. Okay, so we're all connected. The world is a global village. तो हमें क्या मानसिकता रखनी है अपनी, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। सोच ग्लोबल रखनी है, विश्व स्तर की रखनी है, लेकिन जहां बैठे हैं उस समाज में, उस जगह के लिए पहले एक्ट करना है, उस समाज के लिए, उस जगह के लिए। तो हम इसको कहते हैं द ग्लोकल अप्रोच, कि जब हम सोचें तो हम विश्व स्तर पे सोचें, लेकिन जब हम एक्ट करें तो एक्ट करें जहां जिस समाज में बैठे हैं उसके लिए, उसके अनुसार। और जो सोच रखें वो ये रखें कि कल हमें ग्लोबल जाना है। तो हमारा जो कल्चरल एक्सचेंज है वो इनएविटेबल है। ऐसा हो नहीं सकता कि कल की डेट में हमारे बच्चों का या हमारा कल्चरल एक्सचेंज नहीं हो, बिकॉज बाउंड्रीज आर डिफ्यूजिंग, दे वेरी वेरी, बहुत ज्यादा परफोरेशन है उसमें। सो एक्सचेंज इज इनएविटेबल। हम क्या एक्सचेंज करते हैं, पार्टनरशिप्स एक्सचेंज करते हैं, क्रॉस कल्चरल लर्निंग एक्सचेंज करते हैं, हम आपस में इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस बिल्ड करने की हमें कोशिश करनी है। तो बच्चों को जब भी, स्टूडेंट के साथ जब भी इंटरेक्ट करना है एज द सीट ऑफ हायर लर्निंग, वी नीड टू एक्सपोज आवर स्टूडेंट्स टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। देखने दो, सुनने दो, आंखें कान नाक खुले रखने दो, ठीक है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड respect for, like somebody, Rahul ji is just writing here that we need to consider other human beings and life forms alike and have compassion. We need to have compassion for all life forms. हम तो हमारे देश में मानते ही ये हैं, वासुदेव कुटुंबकम। वर्ल्ड इज अ स्मॉल विलेज, द एंटायर वर्ल्ड इज माय फैमिली। हम तो अपने देश में मानते ही ये हैं। जब रोज सुबह शांति पाठ करते हैं तो यही बात कहते हैं, ओम द्याव शांति अंतरिक्ष शांति वनस्पति है शांति देव शांति। पूरे वनस्पति के लिए, सबके लिए हम शांति पाठ करते हैं। हम तो कहते हैं पूरे विश्व का कल्याण हो। सो वी tolerance comes very naturally to us as a culture, as this part of this Indian subcontinent. Tolerance and mutual respect and is very natural part of us.
ऑलराइट, तो इसी को हमें आगे पास ऑन भी करना है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके, इट इट इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो हमें स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ उसके सब्जेक्ट मात्र की नॉलेज नहीं देनी है, वो उसको आ जाएगी, पढ़ के भी आ जाएगी, ठीक है, वो हमें उसके साथ साथ उसको स्किल्स इम्पार्ट करने हैं कि वो ग्लोबली अपने कल्चर को संभालते हुए, उसको इंटैक्ट रखते हुए कैसे ग्लोबली वेरी कन्वीनियंटली ट्रेवर्स कर जाए। दैट इज हाउ वी हैव टू इम्पार्ट एंड बिल्ड द होल स्टूडेंट्स अपने हमारे यहाँ पे। और यही पूरा हमारा यूनिवर्सिटीज का और हायर एजुकेशन का ध्येय होना चाहिए, यही हमारा गोल होना चाहिए, और इसी तरह से हमें अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए विद द स्टूडेंट्स, ऑलराइट। एंड देन लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जो रिसर्च करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, जो शोध करते हैं, वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लेकिन वो इस प्रकार का होना चाहिए कि जो हमारी नेशनल प्रायोरिटीज हैं, ये जो हमारी जो राष्ट्रीय प्रायोरिटीज है, नेशनल प्रायोरिटीज है, उनको भी हम साथ में लेके चले, उस विषय पे भी हम शोध करें, उस विषय पे भी रिसर्च करें और करवाएं, और हमारे अपने लोगों के वेलफेयर और हमारे भारत देश की प्रॉस्पेरिटी को माइंड में रखते हुए ही हम जो सारा रिसर्च और ट्रेनिंग और एजुकेशन करते, द एंटायर फोकस, जो उसका एकमात्र फोकस है, वो होना चाहिए कि भारत को विकसित देश, भारत को महान देश बनाने में, महान देश हम नहीं बनाएंगे, हमारा देश महान है ही, पर उसकी महानता को आगे बढ़ाने में हमारा कहाँ क्या छोटा सा योगदान रह सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस एक आखिरी विचार के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी, समय भी समाप्त होने वाला है, आप लोगों को भी घर जाना होगा। So with this small thought that the purpose of education is a very higher purpose. The purpose is not just building personalities or anything. The purpose of education is to create a society which is a happy society, which is a society full of happiness, जहाँ एक दूसरे के साथ प्रेम, प्यार, सद्भावना से रहा जाए, और अल्टीमेटली गोल यही हो कि हमारा देश को, हमारे देश के लिए हमारा वो छोटा सा योगदान क्या हो सकता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मुझे फीडबैक देने के लिए और बीच बीच में मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी मच, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू मैम। I got this opportunity. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से आपने इस थीम को आज कवर किया। हायर एजुकेशन एंड सोसाइटी आर इंडिविजुअली व्हाट वी शुड डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। इस पे आपने बहुत ही बढ़िया आपकी टॉक रही, बहुत प्रोवोकिंग रही, थॉट प्रोवोकिंग रही। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जल्दी ही फिर पुनः मिलेंगे, और अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो एक